اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 144۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، قد بے شک نرا دیکھ رہے تھے ہم، تقلبا جب آپ اٹھائے ہوئے تھے، وجہ کا اپنا چہرہ، فی السماء آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ سو ہم پھیر دیں گے آپ کو، یعنی قبلتاً اس قبلہ کی طرف، ترضاہا کہ جس میں آپ راضی رہیں گے، فَوَلِّ وَجْهَكَ پس آپ اپنا چہرہ پھیریے، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث اور جہاں کہیں، ما کنتم تم موجود ہو، فولو پس پھیرو، وجوہکم شطرہ اپنے چہرے کو پھیرو مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی، لا یعلمون انہ الحق من ربہم وہ علم رکھتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ بغافل اور اللہ بے خبر نہیں ہے، اما یعملون جو آپ لوگ کر رہے ہو، اللہ بے خبر نہیں ہے۔ تو ہمارا جو ہے قبلے کا جو سبق ہے وہ چل رہا ہے، کل بھی ہم نے اسی کے بارے میں پڑھا تھا کہ قبلے کی جو تبدیلی کا حکم تھا وہ کیوں آیا تھا اور کس وجہ سے۔ آج بھی ہم آگے اسی کو ہی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج کی آیات بھی یہ قرآن میں ربط ہوتا ہے پچھلی آیات کا، تو انہی میں ہی ہے کہ نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنے کی تحقیق۔ آج ہم یہ بات دیکھیں گے کہ امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، جامعہ البیان کی دوسری جلد میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ قتادہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف چہرہ کیے ہوئے تھے، آسمان کی طرف چہرہ کیے ہوئے تھے، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کعبہ کی طرف پھیر دے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ بے شک ہم آپ کا چہرہ کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ تو پھر حسن بیان کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر یہ خبر دی کہ ان قریب اللہ تعالیٰ قبلہ کو بیت المقدس سے پھیر کر کسی اور سمت کرنے والے ہیں، لیکن جبرائیل نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس سمت ہونے والا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب یعنی پسند یہ تھا کہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو آسمان کی طرف پھیر کر وحی کا انتظار کر رہے تھے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ہم آپ کا قبلہ وہی بنائیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ تو اس آیت میں، یعنی یہ جو آیت ہے قبلے کے پھرنے والی، اللہ نے تمام مسلمانوں پر مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا فرض قرار کر دیا، خواہ وہ کسی جگہ ہو۔ اگر کوئی شخص بیت المقدس میں بھی ہوگا تب بھی وہ اپنا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف کرے گا، اور جو شخص کعبہ سے غائب ہوگا تو وہ اس پر لازم ہے کہ وہ کعبہ جس سمت ہو اس سمت وہ اپنا چہرہ کرے گا، یہ فرض ہے۔ تو علامہ قرطبی مالکی نے اس بارے میں لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
हुमा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद यानी जो मस्जिद हराम है उनके लिए बैतुल्लाह किबला है और अहले हरम के लिए मस्जिद यानी मस्जिद हराम किबला है, और तमाम रूए ज़मीन पर मेरी उम्मत के मशरिक़ और मगरिब वालों के लिए मस्जिद हराम किबला है। ये अल्लाह फरमा रहे हैं हमसे। तो इसकी एक ख़ास वजह यूँ है कि काबा की तरफ देखना भी इबादत है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। इससे एक मसला भी साबित हो रहा है कि नमाज की हालत में क़याम में नज़र सामने किबला की तरफ होनी चाहिए या सजदे वाली जगह की तरफ होनी चाहिए, ये सवाल हो सकता है। तो हमारा ये अकीदा है, हम जब नमाज में खड़े होते हैं, जब हम क़याम की हालत में होते हैं तो हम सजदे की जगह अपनी नज़र टिकाते हैं, जब रकू में होते हैं तो जो पैर के अंगूठे हैं उधर हम अपनी नज़र टिकाते हैं, जब सजदे में होते हैं तो नाक की जो नरम हड्डी है उसकी तरफ हमारी नज़र होती है, और जब सजदे में जब उसमें बैठते हैं जलसे और कोमा में, तब हमारी नज़र जो है गोद में होती है, और सलाम फेरते वक्त हमारी नज़र होती है हमारे कंधों की तरफ। हम ऐसे करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मतलब नज़रिया है वो यही है, और ये बिल्कुल ठीक है। हमारी नज़रों का जो मकाम है वो ऐसा ही है। और जो किबले यहाँ पर आया हुआ है कि फिर जो है हमारे चेहरे का यानी हमारी नज़र का किबले की तरफ देखना या फिर काबा की तरफ देखना, तो उसमें ये है कि हम जिस जगह पर नज़र रखेंगे वही हमारा काबा और किबला है, क्योंकि हमारा जो चेहरा है इसको अशरफुल एज़ा, जैसे तमाम हिवानात में इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है, बिल्कुल हमारे तमाम एज़ा में सबसे अफजल जो इज़ा है वो चेहरा है, उसको अशरफुल इज़ा कहा जाता है, क्योंकि हमारे अशरफुल जो इज़ा यानी चेहरा है उसका रुख किबला की तरफ होता है। बाकी हम अपनी नज़र जहाँ रखते हैं हम वहीं रखेंगे। तो इसमें अल्लाह ने एक बात इरशाद फरमाई है कि खुशू और खज़ू के साथ अपनी नमाज़ें अदा किया करो, खुशू और। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि खुशू का मानी क्या होता है। खुशू का मानी होता है अज्ज़ और इनकसारी यानी झुकना, आइन अल्लाह की बारगाह में अपने आप को झुकाना खुशू होता है। और इसके बारे में जो लोग खुशू के साथ नमाज अदा करते हैं, अल्लाह ने उनके लिए खुशखबरी, उनकी तारीफ़ फरमाई है। कुरान पाक में सूरत अल-मोमिनीन में है, क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो खुशू के साथ अपनी नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ने उनके लिए उनकी मदह तारीफ़ फरमाई है कि वो लोग कामयाब हैं जो खुशू व खज़ू के साथ मेरी बारगाह में खड़े होते हैं। तो अगली आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया यहाँ पर, व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, कि जिनको हमने किताब दी है वो जानते हैं ये उनके रब की तरफ से हक़ है, सच है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो अहले किताब को तहवील किबला के बरहक होने का इल्म, अब जो यहूद और नसारा थे उनको ये इल्म था कि तहवील किबला का ये हुक्म उनके रब की तरफ से क्या है, हक है। अब इस पर ये एतराज़ हो सकता है कि यहूदों और नसारा को कैसे इल्म होगा, ना तो उनके किताब में ये तहवील किबला का ज़िक्र मिलता है और ना ही उनके दीन में काबा जो था वो किबला था, तो उनको इस बात का इल्म कैसे था। तो इसमें 5 जवाबात हैं। नंबर 1 कि उनको अपनी किताब से ये इल्म था कि सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक नबी हैं, आप अल्लाह की वही के सिवा कोई बात नहीं कहते और आपकी कही हुई हर बात हक और सवाब है। तो इस तरह उन्हें इल्म था कि आप जो जो हुक्म देंगे अपनी उम्मत को वो तमाम अल्लाह की तरफ से बरहक हैं। इसमें दूसरा जवाब भी है
کہ ان کو اپنے دین سے یعنی جو وہ پڑھ چکے تھے ان سے یہ معلوم تھا، اس بات کا علم تھا انہیں کہ احکام منسوخ ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ان کو علم تھا یہ حکم بھی منسوخ ہو سکتا ہے، اسی لیے تحویل قبلہ پر کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا۔ تیسرا جواب، ان کو اپنی کتاب سے علم تھا کہ کعبہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، تو یہی اللہ کا سب سے پہلا گھر بھی ہے، اور ہم جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی بھی کرتے ہیں، تو ان کا قبلہ ہمارا قبلہ ہے۔ اس میں چوتھا جواب یہ ہے کہ معجزات اور دیگر دوسرے دلائل سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہو چکی تھی، اسی لیے ان کو لا محالہ ہی علم تھا کہ جس جانب کو آپ نے قبلہ قرار دے دیا وہی قبلہ ہے۔ اور پانچواں جواب اس میں یہ ہے کہ ان کی کتاب میں تحویل قبلہ کا حکم بھی لکھا ہوا تھا کہ ایک دن جو قبلہ ہے وہ تبدیل ہوگا۔ تو یہ وہ جوابات ہیں کہ ان کو کیسے علم تھا، یہ ان چیزوں کے ذریعے ان کو اس بات کا علم تھا کہ تحویل قبلہ ہونا ہے اور آئین ہو کر رہے گا، اور ہوا بھی صحیح۔ تو اس کے بعد اللہ نے آگے اگلی آیت میں جو ہے ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ آیت نمبر 145 ہے یہ، اس میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَئِنْ، اور اگر آپ أَتَيْتَ الَّذِينَ دکھا دیں یا ان کے پاس لے جائیں اوت الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی جو اہل کتاب ہیں، بے کلی آیتم، آپ اپنے تمام معجزات اگر اہل کتاب کے پاس بھی لے جائیں، ما تابعوا قبلتک، پھر بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ، اگر آپ نے پیروی کی احواءہم، ان کی خواہشات کی، من بعد، اس کے بعد، ما جاءک من العلم، اگرچہ آپ کے پاس اللہ کا علم آ چکا ہوتا، انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک ضرور ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ تو اس آیت میں جو ہے یعنی ان کا جو اہل کتاب ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے تمام معجزات، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تمام دلائل بھی ان کے سامنے رکھ دیں، تب بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی وہ اپنے قبلہ کو آپ کے لیے ہرگز چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ آپ کے لیے یہ بات ہے کہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں یہ عطا ہے کہ وہ جو ہے وہ کام ہرگز نہیں کریں گے جس کے لیے اللہ نے منع فرما دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات ممکن ہی نہیں کہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کریں۔ تو آگے اللہ نے ایک بات فرمائی ہے کہ اگر آپ کو علم حاصل ہونے کے بعد ان کی خواہشات کی آپ نے پیروی کی تو بے شک ضرور ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اب اس میں مخاطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن مراد آپ کی امت ہے۔ مراد کیا ہے؟ آپ کی امت، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی یہ چیز ان کے حق میں ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے قبلہ کی پیروی کریں، اسی لیے اس میں مخاطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے، لیکن اس میں فرمایا ہم سے گیا ہے، یعنی آپ کی امت سے، کہ اگر میں آپ کو علم دے دوں کہ میرا قبلہ کون سا ہے
उसके बाद अगर तुम लोगों ने मेरे किबले से मुंह फेरा तो तुम यकीनन जालिमों में से होगे। बात समझ आ रही है? यकीनन जालिमों में से होगे। तो अब यहाँ पर एक इस आयत में फरमाया कि इल्म हासिल होने के बाद अगर अहले किताब यानी यहूद व नसारा की अगर कोई बंदा इत्बा करे तो वो ज़रूर जालिमों में से होगा। और इस आयत में इल्म की कैद लगाई है। किसकी? इल्म की, कि जानने के बाद, इल्म आने के बाद अगर कोई उनकी पैरवी करे तो वो जालिमों में से होगा। तो इससे मालूम हुआ कि किसी मसीयत पर उलमा के हक़ में वईद भी बहुत शदीद होती है। जिस तरह उनके हक़ में जो खुशखबरियाँ हैं वो बहुत आला और बहुत अच्छी होती हैं, इसी तरह वईद यानी सज़ाएँ भी फिर बहुत सख्त होती हैं। अगर उनका सारी रात सिर्फ फ़र्ज़ पढ़कर सोना इबादत है और एक आबिद इबादत करने वाला बंदा सारी रात जाए नमाज पर खड़े होकर नवाफिल पढ़ता रहे और एक आलिम बंदा सिर्फ फ़र्ज़ रकतें पढ़कर सोया रहे, तब भी आलिम का सवाब ज़्यादा है। बात समझ आ रही है? तो इसी तरह जो उलमा हैं, अगर उनसे कोई गलती, कुताही या कोई ऐसी चीज़ सरजद हो जाए तो उनकी वईदें भी इसी तरह सख्त हैं जिस तरह उनकी जज़ाएँ सख्त हैं। बात समझ आ रही है? तो अल्लाह यही फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक नेमत, अजीम नेमत इल्म है। और ये अजीम नेमतों का जिक्र आया हुआ है और फिर उसमें से एक अजीम नेमत क्या है? इल्म है, जो अल्लाह ने हमको अता किया है। और उससे नाफरमानी और गुनाह का सदूर सबसे ज़्यादा कभी है, यानी जब बंदा जानने वाला हो जाता है तो फिर वो गुनाहों और बुरी चीज़ों से भी दूर हो जाता है। तो आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अगली आयत में, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम व इन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यालमून, कि जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उस नबी को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह वो अपने बेटों को पहचानते हैं, और उनमें से एक फरीक यकीनन जानबूझकर हक़ को छुपाता है, यानी सच को छुपाता है। तो ये आयत नंबर है 146। तो अहले किताब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटों से भी ज़्यादा पहचानना, तो इसमें तमाम तकरीबन जो हमारे उलमा हैं, मुफस्सिर हैं, उनका इस बात पर इजमा है कि जो अहले किताब वाले थे आपकी सिफ़ात पढ़कर उनको जानते थे, मानते थे और आपको बरहक नबी भी पहचानते थे, बिल्कुल ऐसे जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हों। तो इसमें एक रिवायत आई हुई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पहले हम ये देखेंगे कि उस ज़मीर के लौटने से तायीद होती है कि हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम, ये मैंने पहले बताया था कि ये तौरात के बहुत बड़े आलिम और फाजिल थे। तौरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम खूबियाँ, तमाम सिफ़ात पढ़ चुके थे और जब आपसे मिले तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चार सवालात किए थे। जिन्होंने सुना होगा उन्हें यकीनन ये बात याद होगी। 4 सवालात किए थे और आपने जब उनके जवाब दिए थे तो इन्होंने आगे से फरमाया था आप मुझे अपना कलमा पढ़ा दीजिए। और उसके बाद ये भी आपने अंदेशा किया था कि अब मेरे जो ख़ानदान वाले हैं, कबीले वाले हैं, अब वो मुझे अच्छा नहीं जानेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो इसमें यह है कि हज़रत उमर बयान फरमा रहे हैं कि मैं अब्दुल्ला बिन सलाम से मैंने सवाल किया कि अल्लाह ताला ने अपने नबी पर ये आयत नाजिल की है। आयत कौन सी? अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु, कि जिनको हमने किताब दी वो आप यानी आप नबी को ऐसे पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने आगे से जवाब दिया, ए उमर, जब मैंने आपको देखा, यानी आप हज़रत उमर से फरमा रही हैं,
जब मैंने आपको देखा तो फ़ौरन पहचान लिया, जैसे मैं अपने बेटे को पहचानता हूँ, और मैं सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे से भी ज़्यादा पहचानता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी किताब में आपकी सिफ़ात बयान की हैं, और हमें अपने बेटों के बारे में इतना मालूम नहीं है कि हमारी घर की औरतें क्या क्या करती हैं, लेकिन हम आपके बारे में कि मैं शहादत देता हूँ, गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के बरहक रसूल हैं। हज़रत उमर ने उनके सर को बोसा दिया और फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें हिदायत की तौफीक दी है। तो इसी तरह एक और रिवायत भी आई हुई है, दर मंसूर की पहली जिल्द में हाफिज़ स्यूती लिखते हैं कि सोलबी ने सगीर अस्कलबी से रवायत किया है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब ने हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम से कहा, अल्लाह ताला ने अपने नबी पर ये आयत नाजिल की, अल्लज़ीना यारिफूना कमा यारिफूना अबनाअहुम। पीछे उस आयत का पहला हिस्सा पढ़ा है आपने, यहाँ पर उस आयत का अगला हिस्सा पढ़ा है कि ए अब्दुल्ला ये मार्फत, ये पहचान कैसी है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा, जब मैंने आपको देखा तो आपको इस तरह पहचाना जैसे मैं अपने बेटे को पहचानता हूँ, बल्कि मुझे सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत अपने बेटे से भी ज़्यादा थी, क्योंकि हमारी किताब में अल्लाह ने उनकी सिफ़ात बयान की हैं। तो मैंने देखते ही आपको पहचान लिया कि ये बरहक नबी हैं, और अपने बेटों के मुतल्लिक मैं नहीं जानता कि औरतें क्या करती हैं। हज़रत उमर ने कहा, ए अब्दुल्ला बिन सलाम, तुमको अल्लाह ने तौफीक दी है। तो इससे मालूम होता है कि अल्लाह ने जो ये फरमाया है कि जो जिनको मैंने किताब दी है, यानी अहले किताब लोग, वो आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। तो ये बात साबित हो गई रवायात की रोशनी में। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़ीद इरशाद फरमाया, अगली हम आयत देख रहे हैं, आयत नंबर 147 कि अल हक्कु मिर रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, कि ये जो तहवील किबला है तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए हक है, तो ए मुखातिब तुम शक करने वालों में से ना बनना। बात समझ आ रही है? कभी भी इस चीज़ पर शक ना करना कि हमारा किबला कौन सा है। सिर्फ इतनी सी सोच तुम्हारे अमाल को ज़ाया कर सकती है, क्योंकि कुरान ने फरमाया है कि शत्रल मस्जिदिल हराम, अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेरिए। तो साबित हुआ कुरान में से कि हमारे चेहरे का काबातुल्ला बैतुल्ला यानी अल्लाह के घर की तरफ मुंह होना फ़र्ज़ है। इसके अलावा हम किसी और सिमत को जाएंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। तो यहाँ अल्लाह इसीलिए फरमा रही हैं कि कभी भी शक करने वालों में से ना होना। आगे अगली 148 आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, वाले कुल्लियु विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात, और हर एक के लिए एक सिमत है, हर एक के लिए एक सिमत है जिसकी तरफ वो नमाज में मुँह करता है। आइनमा तकूनु यअती बिकुमुल्लाहु, सो तुम नेकियों में दूसरों से आगे निकलो, दूसरों से आगे निकलो, तुम जहाँ कहीं भी होगे, बेकुमुल्लाहु जमिया, तो अल्लाह तुम सबको एक जगह इकट्ठा करके ले आएगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वो जैसे चाहे जब चाहे जिस तरह चाहे कर सकता है, और बेशक यही उसकी शान भी है। तो इसमें हमने ये देखा कि अल्लाह पहले किबला के बारे में शक करने की ममानियत, यानी आप मना क्यों कर रहे हैं कि हम किबला के बारे में शक ना करें, तो इसकी वजह क्या है। इसमें जो आयत है इसमें भी तारीज़ है कि मुखातबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, लेकिन मुराद कौन है? हम हैं, यानी आपकी उम्मत है, क्योंकि इस आयत में शक करने से मना किया है, और जिस चीज़ से मना किया जाए उसका एक तकाजा होता है। क्या होता है? तकाजा, या तो ये कि वो पहले वाक़या हो चुकी हो या मुतवक्के हो, यानी वाक़या होने वाली हो, वरना मना करने का कोई फ़ायदा
नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तवक्को नहीं है कि वो कभी भी अल्लाह के हुक्म में कोई शक करेंगे। तो इसीलिए शक करने से क्या किया गया है। अब यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कि शक करना ना करना तो इंसान के इख्तियार में नहीं है, क्योंकि ये फितरतन अमल है। बात समझ आ रही है? ये कुदरती हमारे अंदर है कि हम जो है किसी चीज़ पर शक करें या, और माशाल्लाह हम ख़वातीन में तो ये अमल कुछ ज़्यादा ही होता है। तो इसीलिए कि ये गैर इख्तियारी चीज़ का मुकल्लफ नहीं किया जाता। तो इसका जवाब ये है कि शक को ज़ाइल करने के लिए अल्लाह ताला ने दलाइल बयान कर दिए हैं। इसलिए इस आयत का ये मतलब है कि इन दलाइल पर गौर करो, तदब्बुर करो, फ़िक्र करो, ताकि तुम शक करने वालों में से ना हो। तो दलाइल क्या हैं कि मशरिक़ और मगरिब अल्लाह ही के हैं। ठीक है, क्या दलील है? मशरिक़ और मगरिब अल्लाह ही के हैं, वो किसी जिहत और सिमत के साथ मुख्तस नहीं है। इसीलिए जिस सिमत की तरफ मुंह करके सजदा करोगे वो क्या हो जाएगा, सजदा तुम्हारा हो जाएगा। और उसने काबा को इसीलिए किबला बनाया कि वो तुम्हारे नबी के बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किबला था। ठीक है, और वो तुम्हारे नबी का मौलद है, क्योंकि आपकी दुआ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए थे, और ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब ये है कि अल्लाह की ज़ात का हुजूर के लिए किबला होना, बहुत ही खूबसूरत ये अल्फाज हैं। जिसे समझ आ जाएगी तो वो खुद ही समझ जाएगा, और जिसे नहीं आएगी तो फिर मैं भी नहीं समझा सकती। कि अल्लाह ने यहाँ पर फरमाया है कि हर एक के लिए एक सिमत है। ठीक है, हर एक के लिए एक सिमत है जिसकी तरफ वो नमाज में मुंह करता है। तो इसमें दो तफसीरें हैं। एक ये है कि हर इलाका के मुसलमानों के लिए काबा की एक जिहत और एक सिमत होती है जिसकी तरफ वो मुंह करते हैं। मिसाल ऐसे ले लें कि बाज़ इलाकों के मुसलमानों के शुमाल की तरफ काबा है, बाज़ के जनूब की तरफ है, ऐसे है ना कहीं, मतलब हाँ जी बिल्कुल। तो इसी तरह यहाँ पर एक और बात भी आई हुई है कि मसलन इथोपिया के शुमाल की तरफ काबा है, इथोपिया मुल्क है उसके शुमाल की तरफ काबा है, मास्को के जनूब की तरफ है, वस्ती अफ्रीका के मशरिक़ की तरफ है, और बरे सगीर के मगरिब की तरफ काबा है। हमारा मगरिब की तरफ काबा है, हम बरे सगीर सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं ना। तो दूसरी इसमें तफसीर ये है कि असाबे शरीयत और रसूलों में से हर एक का अलग अलग किबला है। ये अब नबियों की बात हो रही है, वो पहले लोगों की बात हो रही थी। ठीक है, तो जिसकी तरफ वो क्या करते थे, अपना मुंह करते थे। मुकर्रबीन का किबला अर्श है, रूहानियीन का किबला कुर्सी है, करूबीन का किबला बैतुल अमूर है, अंबियाए साबिकीन का किबला बैतुल मुक़द्दस है, और आपका किबला काबा है। तो अल्लामा लोसी ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं। कहते हैं कि काबा आपके जिस्म का किबला है, और आपकी रूह का किबला मेरी ज़ात है, और मेरा किबला आप हैं। तो सारे इक्ताबे जहाँ करते हैं काबे का तवाफ़, सारे इक्ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ़, काबा करता है तवाफ़े दर्रे वाला तेरा। या फिर ये भी कहते हैं कि हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। तो अगर ये सवाल यहाँ पर किया जाए कि आपकी रूह का किबला अल्लाह की ज़ात हो तो ये मुतसव्विर है, यानी मुमकिन है। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला की किबला आपकी ज़ात हो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो इसका जवाब ये है कि किबला से मुराद जिहत इबादत नहीं है, यानी वो एक सिमत है। क्या है? सिमत है, बल्कि इससे मुराद मरकज़ तवज्जो है, यानी एक सिमत है जिसकी तरफ हम अपनी तवज्जो करते हैं। यानी आपकी तवज्जो अल्लाह की तरफ रहती है और अल्लाह की ख़ास तवज्जो आपकी तरफ रहती है। तो यहाँ पर हमारा सबक भी ख़त्म हो जाता है। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।